کورونا کے وار جاری مہلک وائرس سے مزید 65 افراد جاں بحق، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 23,360 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 10,29,000 سے متجاوز۔ کورونا سے نمٹنے کے لیے سندھ میں جزوی لاک ڈاؤن، تمام امتحانات ملتوی، مارکیٹیں اور انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بند۔ شہریوں کے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ سڑکوں پر چیک کرنے کا سلسلہ شروع۔ سندھ حکومت کراچی میں لاک ڈاؤن سے ملکی معاشی شارک بند کرنا چاہتی ہے۔ حلیم عادل شیخ کہتے ہیں لاک ڈاؤن پولیس کی بھتہ خوری کے لیے لگایا گیا ہے۔ کراچی سے ملک بھر میں معیشت کا پہیہ چل رہا ہے۔ ایک ہفتے کا لاک ڈاؤن ملک کو کئی مہینے پیچھے لے جائے گا۔ دنیا کچھ عرصہ پہلے مہلک وائرس کو شکست دینے کے قریب تھی۔ بھارت کی انتہا پسند حکومت کے اقدامات سے کورونا پھر پھیلنے لگا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں مودی حکومت کے ناکافی اقدامات کے باعث انسان دوبارہ وائرس کے رحم و کرم پر ہے۔ سندھ میں لاک ڈاؤن کے یہ اپنے نقصانات خود کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں آزاد کشمیر میں توقعات کے مطابق نشستیں لیں۔ تحریک انصاف مستقبل میں سندھ میں بھی حکومت بنائے گی۔ نیب نے آٹا چینی اور ادویات چوروں کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اپوزیشن کے خلاف جھوٹے کیسز انتقام کو پہنچ رہے ہیں۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں سیالکوٹ کے ضمنی الیکشن میں پریزائڈنگ افسروں کو خریدا گیا۔ ایسے افسران تعینات کیے گئے جو تحریک انصاف کے سپورٹرز تھے۔ اور انتظامی امور کی کارکردگی کو بہتر بنانا ترجیح ہے۔ عید پر صفائی کا چیلنج پورا کر کے دکھایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں لاہور کو صاف دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ عید کے دوسرے روز کراچی گیا، صفائی کی صورتحال دیکھ کر دل دکھی ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد جنید اعظم۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ خبروں کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پشاور میں شہری پر پولیس تشدد، انسپیکٹر جنرل معظم جاں انصاری کا نوٹس، ملوث اہلکار کو فوری طور پر معطل کر کے لائن حاضر کر دیا۔ انکوائری کا حکم مزید جانتے ہیں بیورو چیف اشتیاق نور چمکنی کی اس رپورٹ میں۔ انسپیکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا معظم جاں انصاری کا پشاور میں شہری پر پولیس تشدد کی ویڈیو کا سخت نوٹس، ملوث اہلکار کو فوری طور پر معطل کر کے لائن حاضر کر دیا۔ پولیس اہلکار کے خلاف محکمانہ کارروائی کا حکم۔ چیف کیپٹل سٹی پولیس پشاور کو ویڈیو کی مکمل تحقیقات کر کے اپنا رپورٹ جلد از جلد پیش کرنے کی ہدایت۔ قانون سے کوئی بالاتر نہیں۔ اس اہم کیس میں ہر قیمت پر انصاف کی جلد از جلد فراہمی کی یقینی بنایا جائے۔ آئی جی پی کا متاثرہ شہری کے ساتھ اظہار ہمدردی۔ عوام پر پولیس تشدد ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ عوام کی جان و مال، عزت و آبرو کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ کیمرہ مین خلیل الرحمان کے ساتھ اشتیاق نور، کوہ نور نیوز۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی طرف سے انسانی سمگلنگ کا عالمی دن منایا گیا۔ بحری جہازوں، کشتیوں اور ساحلی اڈوں پر بینرز آویزاں کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں کراچی سے انور مقصی کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی انسانی اسمگلنگ کے خلاف عالمی دن ہر سال کو مناتا ہے۔ 2021 کا موضوع متاثرین کی آوازیں راہیں دکھائیں گی۔ اس سال کا مرکزی خیال انسانی اسمگلنگ کے متاثرین کو مہم کا مرکز بنانا ہے اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف جنگ میں کلیدی کردار کی حیثیت سے زندہ بچ جانے والوں سے سننے اور سیکھنے کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ یہ مہم اس جرم کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کے قیام میں ادا کردہ اہم کردار، متاثرین کی شناخت اور بچاؤ اور بحالی کے راستے پر ان کی مدد کرنے پر مرکوز ہے۔ پی ایم ایس نے بھی انسانوں کی اسمگلنگ کے خلاف عالمی دن منایا۔ اس کا مقصد تعمیری اقدامات کا آغاز کرنا اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف آگاہی کو فروغ دینا تھا۔ ان سرگرمیوں میں مختلف نمایاں مقامات یعنی کراچی فشریز ہیڈکوارٹر، پی ایم ایس کے بحری جہازوں، کشتیوں اور ساحلی اڈوں پر بینرز کو آویزاں کرنا شامل تھا، جن میں اس دن کے حوالے سے پیغامات درج تھے۔ اس کے علاوہ اس دن کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہیڈکوارٹر پی ایم ایس میں پی ایم ایس کے افسران اور عملے کے ممبران کو لیکچر بھی دیا گیا۔ اس موقع پر ڈی جی پی ایم ایس نے اس عزم کا یاد کیا کہ ہمیں اجتماعی طور پر دن رات کام کرنا چاہیے اور ہم انسانی اسمگلنگ کے خلاف اپنی کبھی ختم نہ ہونے والی
जद्दोजहद जारी रखेंगे। अहदेदारों और अमले के मेंबरान ने जोश और जज्बे के साथ तमाम सरगर्मियों में हिस्सा लिया। अनवर मक्सी। अमेरिकी हुकूमत ने जान बचाने वाली इंसदाद कोरोना वैक्सीन की 30 लाख खुराकें हुकूमत पाकिस्तान के हवाले कर दी हैं। टीकों की ये खेप कोविक्स और यूनिसेफ के इश्तराक से पहुंचाई गई हैं। अतिया अमेरिका की तरफ से कोरोना वबा के खात्मे के लिए दुनिया भर में 8 करोड़ टीकों की तकसीम के सिलसिले की एक कड़ी है। इस्लामाबाद से हमारे रिपोर्टर अब्बास मलिक के मुताबिक इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी सिफारत खाने के नाज़िमुल उमूर एंजेलिना एगलर ने कहा है कि आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हम सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद आबादियों तक वैक्सीन की रसाई मुमकिन बनाने के मुश्तरका मकसद पर यकीन रखते हैं। वैक्सीन की ये 30 लाख खुराकें उन 25 लाख टीकों के अलावा हैं जो इस महीने के शुरू में अमेरिका ने पाकिस्तानी अवाम को दिए थे। ये टीके जो अमेरिका के अपनी दाखिली फराहमी से हासिल किए गए हैं। सदर जो बाइडन और अमरीकी मिशन के इन वादों की पासदारी के आकाश हैं कि हम कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तानियों के शाना बशाना खड़े हैं। डेरा गाजी खान में मुबैना कारोबारी केस का ड्रॉप सीन, सियासी दबाव और मीडिया पर वाक़या रिपोर्ट, संजरानी बरादरी को खामोश रहने का मशवरा। मजीद जानते हैं मोहम्मद अमीन से। जी अमीन, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम डेरा गाजी खान कचहरी में मौजूद हूँ। कचहरी में एक शख्स गरीब है जो बलोच की निज़ाम से उनको एक पंचायत लगाई जाती है जिसके वजह से और काला काली करार गई या कत्ल कर जाते हैं या कत्ल कर देते हैं या उनसे भत्ता वसूल किया जाता है। मेरे साथ शहरी मौजूद है। सर, आप बता सकते हैं आपके ऊपर इल्ज़ाम जो लगा ये सच है या झूठ है? आपसे कितने पैसे की डिमांड कर रहे हैं वो? सर, मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया है वो सरासर झूठ पर मबनी है। ये पहले भी ऐसे 2 वाक़यात हो चुके हैं जो उन्होंने 18 लाख रुपए चट्टी ली है। ये मकामी ज़िम्मेदार मुनव्वर शाह हुसैन बुखारी की ईमा पर ये करते हैं। मेरा नाम लियाकत अली है, मैं कस्बा मुरगाई से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं RPO डेरा गाजी खान से भी अपील करता हूँ ये मुझे इंसाफ दिया जाए। अगर मुझे कुछ हो गया, पहले भी मेरी दुकान पर ये फायरिंग करके चले गए और मैं ये RPO से अपील करता हूँ मेरे। ये आप मुझे बता सकते हैं आपकी दुकान कहाँ पर है? इन लोगों कौन लोग हैं जो आपकी दुकान के ऊपर फायरिंग करके गए हैं? हाँ, ये संजरानी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये वहीं मैं दुकान पर बैठा हुआ था, फायरिंग करके चले गए। ये बलोच की निज़ाम से जो पंचायत लगाई जाती है, इनसे भत्ता वसूल किया जाता है, कहा कि इनसे पैसे मांगे जाते हैं। इनके खिलाफ RPO डेरा गाजी खान से नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं। जाफराबाद फेडर केनाल में पानी की शदीद किल्लत, तालाब खुश्क हो चुके हैं। नेशनल पार्टी के रहनुमा नईम खान खोसा की क़यादत में एहतजाज कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खोसा से। जी अता मोहम्मद, अपडेट कीजिएगा। जी नाजरीन को मैं बताता चलूँ, आज जो ज़रूरी पानी और पीने के पानी की किल्लत के ख़िलाफ़ नेशनल पार्टी की क़यादत नईम खान खोसो, अब्दुल मजीद बादेनी और मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ हैं जो आज एहतजाज कर रहे हैं। कौमी शाहरा सिंध और बलूचिस्तान का शाहरा बंद करके एहतजाज किया जा रहा है और हमें पानी के 2 कतरे दिए जाएँ क्योंकि अंदरून में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है और फसलात उनके तबाह हो चुके हैं। आइए उनसे पूछते हैं उनकी ज़बानी से। यहाँ से डायरेक्ट पट से भी पाइपें लगे हुए हैं और अगर कहीं झैली शाखें हैं वहाँ से ऊपर से उनकी नहरें निकली हुई हैं, वो भी पक्की हुई है। 50 से 70 पाइपें लगी हुई हैं नाजायज़। इन पाइपों को अगर निकाला जाए तब भी पानी टेल हो सकता है। ये सब वो लोग हैं जो सीजनी 2 लाख रुपए देते हैं और अपनी मर्जी के पाइपें लगाते हैं, अपनी मर्जी से पानी चलाते हैं। क्या यहाँ पर हम जाफराबाद के जाफराबाद पूरा जिला टेल पर है क्या? और ये सब सिफारिशी और वही लोग जो करोड़ों रुपए अपने पोस्टिंग के लिए देते हैं। यहाँ बैरून सिर्फ मीरसन से लेकर बेदार तक 350 ट्यूबवेल है जो बैरून को आबाद कर रहे हैं। कोई हक नहीं है, बट ईमानदारी खुदा गवाह है कि अगर ये असेंबली में आवाज़ उठाते तो आज हमारे इस बेल्ट, इस जरी बेल्ट में, इस जो आबाद बेल्ट था जो अभी गैराबाद हुआ है, गैराबाद किया जा रहा है, ये ऐसे नहीं हो। ये तो पानी छोड़ दें, जो मैयत है उनको गुस्ल के लिए भी पानी हमारे टेलिंग जमींदारों को नहीं है। जो 350 जो ट्यूबवेल और पाइपें बैरून में लगाए गए हैं जिसकी वजह से आज अंदरून पीने के पानी के बूंद बूंद के लिए तरस रहा है और डेरा लायर खासकर जो वहाँ। अता मोहम्मद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
कोरोना की चौथी लहर में शहरियों को महफूज बनाने के लिए वैक्सीनेशन का अमल तेजी से जारी। रहीम यार खान के निवाही इलाका माछी गोट में भी कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगा दिया गया। मजीद जानते हैं अब्दुल गफार मेहर से। जी अब्दुल गफार, तफसीलात बताइए। मुल्क भर में वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। इसी तरह माछी गोट में भी JDW2 माछी गोट की तरफ से कैंप लगाया गया। हम बात करते हैं यहाँ पे वैक्सीन का सिलसिला जारी है, तो अब तक कितने लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, क्या लोग दिलचस्पी ले रहे हैं? जी ये JDW यूनिट 2 की तरफ से ये कैंप लगाया गया है और इसमें हम अपने वर्कर्स और जो सराउंडिंग में लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन के लिए ये सेंटर बना है। ये तकरीबन 4 दिन यहाँ पे रहेगा और हम फैसिलिटेट कर रहे हैं अपने इलाके के लोगों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और वैक्सीन लगवाएँ। हम जिस तरह चौथी लहर आई हुई है कोरोना की, उससे बचने के लिए बेहतरीन तरीका यही है कि आप वैक्सीन लगाएं, आप भी महफूज रहें और अपने ख़ानदान बच्चों को महफूज रखें। इससे आप बचेंगे तो मुल्क की माशियत और अपने काम काज के लिए आप निकलेंगे बाहर। तो वैक्सीन यहाँ चल रही है, ये 4 दिन इतवार तक रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपनी वैक्सीन। जी आपने सुना कि कोरोना की चौथी लहर इंतहाई खतरनाक है और ये सिलसिला तेजी से जारी है। मुल्क भर में वैक्सीनेशन हो रही है, तो इन्होंने मकामी आबादी से और माछीगोट के लोगों से मुतालबा की है कि जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन करवाएं और जल्द अज जल्द इस अमल का हिस्सा बने। अब्दुल गफार मेहर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कोरोना वबा ने हाफिजाबाद में भी पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। शहरियों ने कोरोना SOPs को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद अबू बकर मुगल से। जी अबू बकर, तफसीलात बताइए। जी, दुनिया भर में खौफ की अलामत समझने वाली कोरोना वायरस वबा की चौथी लहर हाफिजाबाद में भी पंजे करना शुरू कर दिया। हाफिजाबाद के शहरी ने कोरोना SOP को नज़रअंदाज कर दिया। मजीद मेरे साथ इस वक्त मौजूद है DHQ के MS डॉक्टर अफजाल अहमद। आइन से जानते हैं किस वक्त अस्पताल में कोरोना के कितने मरीज दाखिल हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इस वक्त हमारे पास कोरोना के 16 मरीज़ दाखिल हैं, जबकि ये जब तीसरी लहर ख़त्म हो रही थी तो ये तादाद कम होकर सिर्फ 2 या 3 रह गई थी, लेकिन पिछले 20 दिन से ये बतदरीज इनमें इजाफ़ा होता जा रहा है और अब आज के दिन में हमारे पास 16 मरीज़ यहाँ पे मौजूद हैं और उनको हम ऑक्सीजन पे हैं सारे के सारे, उनकी कंडीशन भी काफ़ी संजीदा है। इसके अलावा हमारे SOPs के बारे में हमने बहुत सारे लोगों को बार बार तलकीन की कि आप हॉस्पिटल में आते हुए या मार्केट में आते हुए कोरोना SOPs का पूरी तरह ख्याल रखें और अपने आप को जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वैक्सीनेट करवाएं। इसके लिए हमने यहाँ पे मैस वैक्सीनेशन सेंटर बनाया हुआ है, जहाँ पे हमारे 40 लोगों का अमला, मुस्तनद अमला 24 घंटे खिदमात अंजाम दे रहा है और हाँ कम अज़ कम एक दिन में 800 से 1000 वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके बावजूद हम अभी अपने टारगेट से बहुत पीछे हैं। हम अपने लोगों को बार बार इस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं कि आप प्लीज़ आएँ और अपनी वैक्सीनेशन करवा लें ताकि ये चौथी लहर का फैलाव है इसको किसी तरह रोका जा सके। जी, आपने जाना कि हाफिजाबाद में DHQ अस्पताल में भी 16 जो कोरोना के मरीज़ दाखिल हैं और MS ने शहरियों से जो तावन की अपील की है। हाफिजाबाद के शहरियों को चाहिए कि हुकूमती कोरोना SOP पर अमल दरामद करते हुए अपने और अपने घर वालों की ज़िंदगी को महफूज। अबू बकर मुगल हाफिजाबाद से तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर मोहम्मद जुबैर दरिश का पुलिस लाइन में अर्दल रूम अपीलों की समात 50 पुलिस अफसरों और एहलकारों को शोकाज नोटिस जारी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर मोहम्मद जुबैर दरिश ने पुलिस लाइन बहावलपुर में अर्दल रूम का इनेकाद किया। रीजन भर के जिला बहावलपुर, भावलनगर, ईमेल खान और दीगर यूनिट में ट्रांसफर होने वाले पुलिस अफसरान और एहलकान के अपीलों पर समात की। नाक़िस कारकर्दगी के मुर्तकब पुलिस अफसरान और एहलकान को शोकाज नोटिस जारी किए, जिनकी समात करते हुए कसूरवार साबित होने वाले पुलिस एहलकान को महकमाना सजाएँ सुनाई, जबकि अपना कबला रुख सीधा करने वाले फ़राइज़ को ईमानदारी से अंजाम देने वालों को शो का नोटिस दाखिल दफ्तर कर दिए गए। रीजन भर के DPOs की जानिब से दी गई सजाओं पर अपील करने वाले पुलिस अफसरान और एहलकान भी पेश हुए, जिनकी अपील का तफसीली जायज़ा लेते हुए उनको सुनकर RPO ने मौके पर अहकाम सुनाए और आइंदा मेहनत और ईमानदारी से नौकरी करने की हिदायत की। भटके हुओं को रास्तों पर लाना, सर्विस ज्वाइन करते वक्त अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करने का हलफ उठाने वालों को बराह रास्त पर लाना और उनकी सलाह करना बहुत ज़रूरी है। इस मकसद के लिए अर्दल रूम का इनेकाद किया जाता है, जिसमें बुरे काम पर डिपार्टमेंट एक्शन लेते हुए सज़ा और अच्छा काम करने वालों को इनामात दिए जाते हैं। इसके अलावा महकमा पुलिस में काम करने वाले पुलिस अफसरान और एहलकान की वेलफेयर के लिए दिन रात कोशिश हैं
कैमरा मैन खुरम मुश्ताक के साथ फजल जुवैद खान। जब वर्दी वाले ही शादी की तकरीब में फायरिंग करेंगे तो आम आदमी क्या करेगा? लाहौर के इलाके इस्लामपुरा हिंदू कैंप में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग का मामला। पुलिस कांस्टेबल ने दोस्तों को फायरिंग करने की इजाजत दी। 16 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एसपी सिटी ऑपरेशन हसन जहांगीर के हुक्म पर मुतलका पुलिस की तरफ से फायरिंग करने वाले 16 अफराद के खिलाफ हवाई फायरिंग और करीबी इमारतों को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा थाना इस्लामपुरा के एएसआई इसहाक की मुद्दयत में दर्ज कर लिया गया है। शादी की तकरीब जारी थी कि मुल्जमों काशिफ, कासिम, आतिफ, सुहेल और हारिस अकबर उर्फ पांडा ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया और करीबी इमारतों को नुकसान भी पहुंचा। मुतलका पुलिस ने जाए वकुआ से गोलियों के खोल भी इकट्ठे कर लिए, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया। मुल्जमों ने पुलिस पार्टी को देखते ही दौड़ लगा दी। SHO इस्लामपुरा साजिद नजीर ने दूल्हे के वालिद को गिरफ्तार कर लिया है। लाहौर के इलाका काहना में मुबैना पुलिस मुकाबला। भत्ताखोर और उजरती कातिल नदीम उर्फ मिठा गाड़ी साथियों की फायरिंग से मारा गया। CIA मॉडल टाउन पुलिस मुल्जिम को असलहे की बरामदगी के लिए ले जा रही थी, जिसके 4 साथियों ने हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक हमलावर अपने साथी को आजाद करवाना चाहते थे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, तफसीलात बताइए। जी बिल्कुल, ये CIA मॉडल टाउन नदीम उर्फ मिठे को असला की जो है वो बरामदगी के लिए जो है वो काना के इलाका में ले जा रही थी, तो वहां पर पहले से ही 4 उसके साथी जो है वो आतिशी असला के साथ मौजूद थे, जिन्होंने सरकारी गाड़ी पर फायरिंग की। पुलिस वालों ने जो है वो जान भागकर अपनी बचाई, लेकिन उन फायरिंग की जद में जो है वो उनका अपना एक साथी जो है वो नदीम उर्फ मिठा आ गया, जो कि मौका पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने जो जवाबी फायरिंग तो की, लेकिन ताहाल कोई भी जख्मी ना हुआ, लेकिन मुल्जमान जो है वो अंधेरे का सहारा लेते हुए जो है वो गली मोहल्लों में छिप गए। इसके अलावा जो है वो पुलिस ने सर्च ऑपरेशन भी किया, लेकिन ताहाल चारों वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। नदीम उर्फ मिठे की अगर बात की जाए तो गुजरपुरा का ये रिहायशी है और उजरती कातिल है। लोगों से पैसे लेके कत्ल करना, जगह टैक्स मंगना, तावान और डकैती के मुकदमात जो है वो मुतादिद इसके ऊपर दर्ज थे। और इसके अलावा मैं बताता चलूं कि ये साबका रिकॉर्ड याफ्ता था। CIA मॉडल टाउन ने जो है वो इसको गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद इसको जो है वो शिनाख्त परेड के लिए जेल भिजवाया था। जब जेल से ये वापस आया तो इसने अपने साथियों की गिरफ्तारी और असला की जो है वो बरामदगी का जो है सीनियर पुलिस अफसरान को बताया कि मैंने काना के इलाका में जो है वो असला छुपा रखा है, जिसको जो है वो पुलिस अपने हमरा लेके गई। तो पहले से ही वहां पर 4 लोग मौजूद थे, जिन्होंने जो है वो पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग करना शुरू कर दी। मुल्जमान का असल मिशन ये था कि नदीम उर्फ मिठा गाड़ी जो है वो उसको छुड़वाना के अपने हमरा साथ ले जाएंगे, लेकिन उनकी फायरिंग से जो है वो मिठा गाड़ी जो है वो मौका पर ही कत्ल हो गया, जिसकी डेड बॉडी को जो है वो मुर्दा खाना पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि मुतादिद मुकदमात में ये लाहौर पुलिस को मतलूब था, जिसको गिरफ्तार करने के बाद जो है वो काना के इलाका में ले जाया जा रहा था। वहां अपने साथियों की फायरिंग से जो है ये मारा गया। ताहाल जो है वो अब इसकी डेड बॉडी को जो है मुर्दा खाना जो है वो जमा करवा दिया गया है, जहां पर इसका पोस्टमार्टम मुकम्मल होने के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी जाएगी। जी वसीम साबिर टेलीफोन लाइन पर हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज फील्ड में अज खुद मौजूद टीमों को अंडरपास पर मुतहरक रहने और बारिशी पानी को फौरी निकालने की हिदायत। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज ने आबिद मार्केट, शमा, करतबा चौक और लक्ष्मी चौक का दौरा भी किया। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज ने वासा टीमों को पंप्स को ऑपरेशनल रखने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि बारिशी पानी के निकास को फौरी यकीनी बनाया जाए। अभी भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। DC लाहौर ने कहा कि शदीद बारिश की भी पेशगोई है। असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर अमला अज खुद फील्ड में मौजूद रहे। बारिश की सूरत में होल्स को मुकम्मल ढांप कर रखा जाए ताकि किसी भी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। आपको बता रहे हैं कि DC लाहौर मुदस्सिर रियाज फील्ड में अज खुद मौजूद हैं। टीमों को अंडरपास पर मुतहरक रहने और बारिशी पानी को फौरी निकालने की हिदायत की है। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज ने आबिद मार्केट, शमा, करतबा चौक और लक्ष्मी चौक का दौरा भी किया। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज ने वासा टीमों को पंप्स को ऑपरेशनल रखने की हिदायत की।
انہوں نے کہا کہ بارشی پانی کے نکاس کو فوری یقینی بنایا جائے۔ ابھی بھی کچھ علاقوں میں ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ ڈی سی لاہور نے کہا کہ شدید بارش کی بھی پیش گوئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنرز اور دیگر عملہ از خود فیلڈ میں موجود رہے۔ بارش کی صورت میں ہولز کو مکمل ڈھانپ کر رکھا جائے تاکہ کسی بھی قسم کے نقصان سے بچا جا سکے۔ لاہور میں بارش کے بعد شاہدرہ انڈر پاس سے نکاسی آب کے لیے آپریشن واسا اور LWMC کی جوائنٹ ٹیموں کو شاہدرہ نکاسی آب پر مامور کیے جانے کی ہدایات۔ کمشنر لاہور نے کہا کہ ACs افسران اور عملہ تمام سورنگ پوائنٹس پر خود موجود ہونے چاہئیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ملک آیان سے۔ جی آیان، تفصیلات بتائیے۔ آج بالکل آج مختلف علاقوں میں لاہور کے جو ہے بارشیں ہوئی ہیں، جس کے بعد شاہدرہ انڈر پاس میں سے جو پانی کی نکاسی کے لیے فوری طور پر جو ہے آپریشن شروع کیا جائے۔ کمشنر لاہور کی یہ آج ہدایات جاری کی گئی ہیں، کیونکہ شاہدرہ ٹاؤن جو ہے وہاں پر جو انڈر پاس ہے شاہدرہ کا، وہاں پر جو ہے پانی کافی زیادہ تعداد میں جو ہے کھڑا ہو گیا تھا وہاں پر، جس کے بعد جو ہے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ جس کے بعد واسا اور LWMC اور وہاں پر جو ہے MCL کا عملہ ہے وہ فوری طور پر وہاں پر جو ہے پہنچ چکا ہے، جیسے کمشنر لاہور کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں، جبکہ پمپس کو آپریشنل رکھا جائے تاکہ مکمل طور پر جو پانی ہے وہ سڑکوں سے نکالا جا سکے۔ بعض علاقوں میں ابھی تک ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، جبکہ شدید بارش کی بھی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے لاہور کے تمام ڈسپوزیبل اسٹیشن کو جو ہے پوری گنجائش کے ساتھ جو ہے کام کر رہے ہیں اس وقت، جبکہ کمشنر لاہور نے ہدایات جاری کی ہے کہ ACs افسران اور عملہ تمام سورنگ پوائنٹس پر خود موجود رہیں اور تمام تر وہاں پر جو صورتحال ہے اس کو خود مانیٹر کریں، اس کی فوری طور پر جو ہے وقتاً فوقتاً جو رپورٹ بھی کرتے رہیں۔ تمام چھوٹی بڑی اربن سڑکوں کے نالوں میں گرنے والے ہولز کے مکمل طور پر جو ہے کلیئر کرنے کی ہدایات بھی آج کمشنر لاہور کی جانب سے جاری کر دی گئی ہے، جبکہ بھارتی میں 42، فرخ آباد میں 67، پانی والا تالاب میں جو 54 mm بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ کئی علاقوں میں تیز بارش کا ابھی بھی امکان ہے، جہاں پر تیز بارش ہو سکتی ہے وہاں پہ جو ایریاز کے متعلقہ افسران ہیں ان کو بھی جو ہے متحرک کر دیا گیا ہے کہ وہاں پر جو اگر کوئی ایسی صورتحال پیش ہے تو فوری طور پر جو ہے اسے نپٹا جائے اور پانی کو کہیں بھی ہرگز کھڑا نہ ہونے دیا جائے اور ٹریفک کے معاملات کو جو ہے فوری طور پر دیکھا جائے، جبکہ شاہ عالم چوک، لکشمی چوک، مال روڈ، اچرا سمیت تمام ایریاز میں صاف نکاسی آپ کے لیے اس ٹائم متحرک ہے اور کمشنر لاہور جو ہے وہ خود بھی تمام تر معاملات کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ جی آیان ملک تفصیلات بتا رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔